Hello students, welcome to Edvis Learning. Our today's topic is chapter number 1 of class 10. Name of chapter is similarity. Okay, so similarity chapter is connected with the triangle. You might have learned about triangle. Triangle के बारे में 9th standard में 8th standard में हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं. That is congruence of triangle है. Similarity 9th में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ था और आज हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी. सो फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. रेशियो का मतलब क्या होता है? वन नंबर इज इन न्यूमरेटर, सेकेंड नंबर इज इन डिनोमिनेटर. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ व्हाट? ट्रायंगल. सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वी हैव टू ट्रायंगल्स विथ अस. ओके, सो फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल एबीसी, सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल पीक्यूआर. वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द बेस एंड हाइट इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. किसको बोलते हैं ट्रायंगल में बेस और हाइट? दैट इज हाइट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स. दैट इज इन फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, अभी यहां पे दिस इज द हाइट एडी. ओके, एडी इज अ हाइट एंड तो यहां पे बेस कौन आएगा? बीसी. लाइकवाइज अगर हम लोग बी से हाइट ड्रॉ करते हैं तो एसी बेस आएगा, अगर हम लोग सी से हाइट ड्रॉ करते हैं तो एबी बेस आएगा. इसका मतलब एक ट्रायंगल को 3 बेसेस एंड 3 हाइट्स हो सकते हैं. आउट ऑफ दैट वी हैव टेकन एडी एज अ हाइट एंड बीसी एज अ बेस. इन नेक्स्ट ट्रायंगल, in triangle PQR we have PS is a height and QR is a base of triangle. Okay, height का मतलब क्या है? height is a perpendicular line or base on which it is perpendicular is known as a base of triangle. Now to find this ratio of areas of two triangle, as I told you ratio का मतलब होता है one triangle is in numerator, second is in denominator. Therefore we know that area of triangle is equal to half into base into height. This we know already. If you go for first triangle, that is area of triangle ABC, we have a formula half into base into height. Therefore it is half into base is BC, yes it is correct, into height is AD. Same way go for a second triangle, that is area of triangle PQR. We have formula half into base into height, so this is half into base is QR into height is PS. Therefore ratio of areas of two triangles, so what we have written is area of triangle, both triangle formula half into base into height. Now what is mean by ratio? Ratio का मतलब है one thing is in numerator, second is in denominator. तो इनको हम लोग रेशियो बनाएंगे मतलब we have with us is area of triangle ABC, रेशियो बनाएंगे अपॉन area of triangle PQR is equal to its right hand side, that is half into base BC into height AD divided by half into QR into PS. ओके, बीच में क्या किया? डिवीजन का लाइन खाली दिए हमने, सो ये रेशियो बन गया. नाउ इन दिस केस half of get cancelled, so our answer will be area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, our answer is BC into AD upon QR into PS. So this is our required answer. So let us revise the statement, that is ratio of areas of two triangle. Ratio का मतलब one thing is in numerator, second is in denominator.
रेशियो ऑफ व्हाट, एरियाज, हियर ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। कैसे होता है वो, सी हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बेस बीसी इंटू एडी। बीसी इज अ बेस, एडी इज अ हाइट, मतलब आंसर क्या आया, बेस इंटू हाइट। ओके, फिर दूसरा ट्रायंगल क्यूआर इंटू पीएस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। इसका मतलब इफ यू राइट दिस इन अ जनरल फॉर्म, इसका मतलब इफ यू राइट दिस इन अ जनरल फॉर्म, area of triangle ABC upon area of triangle PQR. So total there are two triangles. So in general, we can consider areas as A1 and A2. So here this is A1 upon A2. For first triangle, base B1, height H1. For second triangle, base B2, height H2. Therefore we can write this in स्टैंडर्ड या फिर इन अ जनरल फॉर्म। अगर इसको मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, दैट इज फर्स्ट वन A1 अपॉन A2, एज आई टोल्ड फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर रेशियो। ओके, अभी इसको अगर हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लोग ये लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, so this is a statement for first. Now in this we have next condition with us, if in this we have equal bases, अगर इसी इक्वेशन में अगर बेस इक्वल है तो क्या होगा, तो आंसर ऐसे आएगा, देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, B1 B2 कैंसल, क्यों कैंसल हुआ, द रीजन इज बेसेस आर इक्वल, उनका वैल्यू सेम ही है तो वो कैंसिल हो गया। अच्छा, और कौन सा पॉसिबिलिटी है इसमें, जैसे बेसेस इक्वल आया वैसे और क्या इक्वल आ सकता है, हाइट इक्वल आ सकता है, दैट इज इक्वल हाइट्स। अगर हाइट इक्वल है तो क्या होगा, देन आंसर विल बी, नाउ इट इज वेरी सिंपल, आपको भी आंसर आएगा या, इफ हाइट इज इक्वल देन ratio of areas of two triangles is equal to ratio of their corresponding bases, that is B1 upon B2. So this is general statement, A1 upon A2 equal to B1 into H1 upon B2 into H2. Now second statement about bases, अगर bases equal है तो आंसर में क्या बचेगा, height ही बचेगा ओनली, तो it is H1 upon H2। अगर height equal है तो क्या बचेगा, B1 upon B2। Now fourth possibility is, in this case suppose we have equal base and equal height। okay, base भी equal है, height भी equal है, then what will happen, that is A1 upon A2 is equal to base height, दोनों equal, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर remains 1 upon 1। Now if you cross multiply this, you will get A1 is equal to A2, दोनों एरिया आपको इक्वल मिलेंगे। सो ट्रायंगल्स having equal base and equal height, their areas are equal. This is property number 1, ratio of areas of two triangles, जिसमें हमको क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे हमको ये याद रखना है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। मतलब अगर क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल दिया है, हाइट बेस भी हमारे पास है, तो हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ट्रायंगल का बेस कौन है, ट्रायंगल का हाइट कौन है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हमको ये समझ में आ गया कि बेसिस तो सेम है तो उसको कैंसिल कर दिया, आंसर क्या बचेगा, हाइट अपॉन हाइट, फिर ट्रायंगल का नाम जो भी दिया होगा। ठीक है, इफ वी हैव इक्वल हाइट्स, अगर हाइट इक्वल है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर रहेगा बेस, तो जो भी नेमिंग दिया रहेगा B1 अपॉन B2।
अच्छा, अगर डायग्राम में ये समझ में आ गया कि दोनों भी सेम है, बेस एंड हाइट बोथ आर सेम ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, देन आंसर बिकम्स 1/1. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इट इज a1 इज इक्वल टू a2. ओके, जिस क्वेश्चन में ट्रायंगल का नेमिंग दिया है लाइक दिस ABCPQR, वो हम लोग लिखेंगे. और अगर ट्रायंगल का नेमिंग हमको नहीं दिया है तो एरियाज के लिए हम लोग A1 A2 यूज करेंगे, बेस के लिए हम लोग B1 B2 यूज करेंगे और हाइट के लिए हम लोग H1 H2 यूज करेंगे. सो दिस इज अ फर्स्ट कंसेप्ट. ओके, let us move to next slide now. We have some activities. Total there are 3 activities with us. So this is first activity. Activity क्यों? कि जो कंसेप्ट हमने सीखा है इसमें हमको क्या सीखना था? To identify the base and height of the triangle. तो हम लोग इसमें देखेंगे बेस हाइट हमको आइडेंटिफाई करने आया है या नहीं. So therefore this is the diagram given. This is the diagram given in which AR is given as perpendicular on this base. Now see the triangle. मैंने आपको अभी बोला करना क्या है, बेस एंड हाइट आइडेंटिफाई करेंगे. एरिया ट्रायंगल ABC, डायग्राम में देखेंगे सब लोग ABC, एरिया ट्रायंगल ABC. हाइट का मतलब क्या होता है, या तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा या तो B से या तो C से. इन अवर डायग्राम परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया है, A से. AR इज अ परपेंडिकुलर. इट मींस इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम AR इज अ हाइट. ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC. तो बेस कौन आने वाला है, बेस इज BC. तो मैं वहां पे लिखूंगा बेस इंटू हाइट मेरा फॉर्मूला है. तो हियर बेस इज इक्वल टू BC. ओके, बेस इंटू हाइट लिखना है मुझे. हाइट क्या है, AR. सो देयरफॉर AR, बेस BC इंटू हाइट AR. नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल APQ. APQ इतना ही ट्रायंगल देखेंगे. ओके, अभी हाइट अगर ढूंढना है तो कहां से ढूंढेंगे, या तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा या तो P से या तो Q से. तो अपने इस डायग्राम में A से ड्रॉ किया है तो अगेन AR इज अ हाइट और बेस कौन आएगा, PQ इज अ बेस. सो हियर विल राइट दैट इज PQ इज अ बेस, AR इज अ हाइट. ओके, सो इट इज B1 इंटू H1 B2 इंटू H2. इस फॉर्मूला से हमने उसको सॉल्व किया. नाउ बाय सीइंग द आंसर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट AR is a height for both the triangle. हाइट सेम है एंड एज हाइट इज सेम वो कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर बचेगा BC अपॉन PQ. दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट एक्टिविटी. ओके, नाउ विल गो फॉर सेकेंड एक्टिविटी. सी डायग्राम फॉर सेकेंड एक्टिविटी इज विथ अस. इन ट्रायंगल LMN एंड ये दूसरा ट्रायंगल है DMN. ओके, LMN DMN करना वापस वही है, फाइंड द बेस एंड हाइट. सो इन ट्रायंगल LMN, ओके, फर्स्ट ट्रायंगल एज आई टोल्ड यू हाइट ड्रॉ किया होगा या तो L से या तो M से या तो N से. तो M से और N से तो नहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन L से हमको दिख रहा है. LP इज अ हाइट और इसका बेस कौन आएगा, ट्रायंगल कौन सा है, LMN पूरा. तो MN इज अ बेस. ओके, MN is a base and LP is a height. तो यहां पे आएगा LP as a height, that is base into height. Now moving towards second triangle DMN. Identify the triangle DMN. यहां पर भी देखो हाइट कहां से ड्रॉ किया है, D से. तो DQ is a height और ट्रायंगल का नाम क्या था, DMN. तो MN is a base. So here it is MN as a base and DQ is a height. Now we can see that MN base is equal, दोनों ट्रायंगल का बेस MN कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो अपना हाइट. आंसर है हाइट अपॉन हाइट, दैट इज LP अपॉन DQ is the answer for second activity. Now we'll move to third activity. देख लो ठीक से थर्ड एक्टिविटी. थर्ड एक्टिविटी थोड़ा सा अलग है. थर्ड एक्टिविटी में सी दिस इज ट्रायंगल ABC एंड CM. ये हमको ड्रॉ करके दिया हुआ है. CM एज अ मीडियन, मतलब ये दोनों पार्ट अभी हमारे पास इक्वल है. CM इज अ मीडियन, ये दोनों पार्ट अभी हमारे पास इक्वल है. नाउ सी इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC. ओके, हम लोग कब से क्या कर रहे हैं, हाइट एंड बेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं. Now in this triangle perpendicular line is not given, therefore height is
नॉट गिवन, देयरफॉर बेस इज नॉट देयर। सो ऐसे टाइप के ट्रायंगल में जहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्टली नहीं दिया है वहां पे हमको हाइट या तो ड्रॉ करना होता है, और सेकेंड आइडिया भी हमको याद रखने के लिए पहले मैं आपको फर्स्ट आइडिया बोल देता हूं और फिर उसके बाद ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। दैट इज, सी फर्स्ट ट्रायंगल, नेम ऑफ ट्रायंगल इज AMC, AMC 3 अल्फाबेट। ओके, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है BMC, BMC वापस 3 अल्फाबेट। तो दोनों ट्रायंगल मिला के अल्फाबेट कितने होने चाहिए? 6 अल्फाबेट शुड बी देयर। दोनों ट्रायंगल मिला के 6 अल्फाबेट होने चाहिए, लेकिन अपने डायग्राम में 6 अल्फाबेट है क्या? 1 2 3 4, 4 ही अल्फाबेट है। वी हैव 2 ट्रायंगल्स विथ अस, फर्स्ट ट्रायंगल को 3 अल्फाबेट, सेकेंड ट्रायंगल को 3 अल्फाबेट होने चाहिए। मिला के कितने हो गए? 6, लेकिन अपने डायग्राम में कितने? 4 ही है। इसका मतलब दिस आर जॉइंट डायग्राम, एंड देयरफॉर इस टाइप के डायग्राम में हम लोग डायग्राम देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि चारों पॉइंट में से, चारों अल्फाबेट में से अगर 3 अल्फाबेट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। देखो यहां पे टोटल चारों अल्फाबेट में से AMB कोलिनियर है, एक ही लाइन में, तो ऐसे टाइम पे हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। सो इन दिस वी हैव ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC विथ अस। दैट इज, for triangle AMC we have 3 alphabet, AMC3. okay, for second triangle we have again have 3 alphabet. टोटल मिले कितना होना चाहिए? 6 अल्फाबेट होना चाहिए, राइट? 6 होना चाहिए, लेकिन अपने डायग्राम में टोटल देयर आर ओनली 4 अल्फाबेट्स। ओके, सो दिस इज, इन दिस केस आउट ऑफ 4 अल्फाबेट इफ 3 आर कोलिनियर, अगर 4 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, देन इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम द हाइट ऑफ ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम। तो देयरफॉर मैं आंसर क्या लिखूंगा? अगर हाइट सेम आता है तो मैं आंसर लिखूंगा बेस अपॉन बेस। सो तो बेस कौन रहेगा? बेस कौन रहेगा? ओके, जो कोलिनियर में पॉइंट्स है वही ट्रायंगल के बेस है। फॉर एग्जांपल आवर फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल AMC, AMC इन दिस कोलिनियर में क्या आ रहा है? AM, तो वी हैव AM इज अ बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। हाइट दोनों का सेम आया। क्यों आया सेम हाइट? बिकॉज आउट ऑफ 4 अल्फाबेट या 4 वर्टाइसेस 3 आर कोलिनियर। ओके, एक ही बाहर है जहां से हम लोग हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इन ट्रायंगल BMC, ओके, इसमें बेस कौन रहेगा? जो कोलिनियर में आया है वही बेस रहेगा, तो MB इज अ बेस। ओके, नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट AM एंड MB आर इक्वल। क्वेश्चन ने बोला है कि वो मीडियन है करके, तो ये AM एंड MB आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर बिकम्स 1/1, एंड 1/1 का मतलब 1। दिस इज द फर्स्ट मेथड। क्या मेथड बोला मैंने? कि आउट ऑफ, फॉर फर्स्ट ट्रायंगल 3 अल्फाबेट, फॉर सेकेंड ट्रायंगल अगेन 3 अल्फाबेट, टोटल देयर शुड बी 6 अल्फाबेट, बट इन अवर डायग्राम टोटल 4 ही अल्फाबेट है, उसमें से 3 अगर कोलिनियर है तो हाइट इज ऑलवेज सेम। दूसरा मेथड आइडेंटिफाई करने के लिए, इन दीज 2 ट्रायंगल्स दीज 3 अल्फाबेट्स आर कोलिनियर, एंड देयरफॉर अगर हाइट ड्रॉ करना है तो मैं हाइट ऐसे यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, लाइक दिस। ओके, ये आएगा हाइट, सपोज हाइट D। नाउ फॉर दिस ट्रायंगल एज वेल एज फॉर दिस ट्रायंगल दिस इज द कॉमन हाइट, तो अगेन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाइट इज सेम। ओके, सो देयरफॉर इन दिस हाइट इज सेम, सो आंसर आया बेस अपॉन बेस। AM एंड MB आर इक्वल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज अबाउट activity. Now using these formulas, this property, will move to our next exercise, that is practice set 1.1. practice set 1.1 के लिए हम लोग अभी जाएंगे। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या किया था। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपना था A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2, दैट इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, दूसरा था कि अगर बेस इक्वल है तो हमारा आंसर क्या आएगा? A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2। अगर हाइट इक्वल है तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। एंड अगर दोनों इक्वल है, बेस हाइट दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा 1/1। ओके, नाउ जिस ट्रायंगल में हमको ट्रायंगल का नेमिंग दिया है वहां पे हम लोग नेमिंग लेंगे, लेकिन अगर नेमिंग नहीं दिया है
तो we will consider areas as A1, A2, bases as B1, B2 and height as H1, H2. Now let us go to first question. Base of triangle is 9 and height is 5. हमको एक ट्रायंगल दिया है जिसका बेस 9 है एंड हाइट 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरा भी ट्रायंगल है, उसका बेस 10 एंड हाइट इज इक्वल टू 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल. सो सॉल्यूशन. सो इन दिस क्वेश्चन ट्रायंगल का नाम हमको नहीं दिया है एंड देयरफॉर वी कैन से दैट area of first triangle is A1 and its height is H1, okay, and base is B1, and for second triangle area is A2, base is B2 and height is H2, okay. So therefore हमको क्या find करना है, ratio of areas of two triangles, that is A1 upon A2 हमको find करना है. तो therefore let A1 B1 H1 is area, base and height of first triangle for first triangle as well for second triangle, that is second triangle के लिए A2 is the area, B2 base, H2 height is area, base and height of second triangle. Okay, now what is given? First triangle का base B1, okay, base of triangle is 9 and height is H1, okay, H1 is 5, it is already given, okay. Also base B2 for second triangle, base of another triangle is 10, also its height H2 is given as 6, okay. हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरियाज. देयरफॉर A1 upon A2 is equal to formula B1 into H1 upon B2 into H2, okay. This we need to find. Therefore A1 upon A2 is equal to, now put the values B1 into H1. See B1 यहां पे, ठीक है, B1 का आंसर हमने यहां पे लिखा है, देखो 9 इंटू H1 का आंसर है 5 डिवाइडेड बाय B2 का आंसर है 10 इंटू H2 का आंसर है 6, ओके. देयरफॉर नाउ जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां कैंसलेशन हम लोग करेंगे. दैट इज 5 1 जा 5 2 जा 10 कैंसलेशन. नाउ 6 and 9 they are present in table of 3, that is 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. क्या बचा, देखो आंसर 3 into 1, that is A1 upon A2 is equal to, न्यूमरेटर में 3 into 1 is 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 into 2 is 4. सो रेशियो कितना आया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 3 upon 4. देयरफॉर A1 is to A2 is equal to 3 is to 4. A1 is to A2 is equal to 3 is to 4. Therefore फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल is 3:4. okay, this is the final answer for the question. okay, आप ये सब आंसर लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन को रिवाइज करके देता हूं. दैट इज base of triangle is 9 and height is equal to 5. that is for first triangle A1 B1 H1 is area, base and height of first triangle. For second triangle A2 B2 H2 area, base and height for second triangle. Now for first triangle B1 is equal to 9 and H1 is equal to 5. For second triangle it is given the base of another triangle is 10, that is base B2 is 10, its height is equal to 6. So
यहाँ पे बेस हाइट सब अलग अलग दिख रहा है, सो विल अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीखा था वो यहाँ पे आएगा एज अ रीजन। नाउ पुट द वैल्यूज, b1 का वैल्यू 9, h1 का 5, b2 का 10 एंड h2 का 6। गो फॉर कैंसिलेशन, 5 1 जा 5 2 जा, 6 एंड 9 आर प्रेजेंट, 3 के टेबल में दोनों प्रेजेंट है, 3 के टेबल में, सो 3 2 जा 3 3 9, सो 3 into 1 is 3, 2 into 2 is 4, so 3 upon 4 that is 3:4 is the ratio of areas of these two triangles। ठीक है, so this is about question number 1। now we'll move to second question, that is see for second question जिस क्वेश्चन में हमको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। दैट इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज BC परपेंडिकुलर टू AB, सीयर BC परपेंडिकुलर टू AB, 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास यहाँ पे। AD परपेंडिकुलर टू AB, AB परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे भी 90 का एंगल हमारे पास है। ठीक है, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन, फाइंड एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस, फॉर्मूला एक ही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। फिर हम लोग चेक करेंगे कुछ इसमें इक्वल है क्या, बेस या हाइट इक्वल है क्या। अगर बेस इक्वल है तो हम लोग आंसर लिखेंगे हाइट अपॉन हाइट, और अगर हाइट इक्वल है हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन बेस। ओके, देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन वी हैव विद अस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। चेक करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC ऊपर वाले ट्रायंगल में आइडेंटिफाई द बेस एंड हाइट। हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस एंड हाइट, 90 डिग्री एंगल अगर हमारे पास है तो हाइट एंड बेस आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। दैट इज इन दिस ट्रायंगल, एज दिस एंगल इज 90 डिग्री, AB इज अ बेस, BC इज अ हाइट। अच्छा, उल्टा भी बोल सकते हो, इसको हाइट इसको बेस बोला तो भी चलेगा। AB इज अ बेस, BC इज अ हाइट। नाउ इन सेकेंड ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में अगेन वी हैव AB विथ अस, सो AB इज अ बेस, AD इज अ हाइट। सो इन बोथ द ट्रायंगल AB इज अ कॉमन, 2 बार आ रहा है AB, तो दोनों के लिए AB को अगर मैं बेस कंसीडर करता हूं तो मेरा आंसर आएगा हाइट अपॉन हाइट। एंड देयरफॉर फॉर फर्स्ट ट्रायंगल हाइट इज इक्वल टू BC, फॉर सेकेंड ट्रायंगल हाइट इज इक्वल टू AD। मैंने खाली हाइट लिखा, बेस लिखा ही नहीं, क्यों, बिकॉज AB दोनों के लिए बेस मेरे पास है जो इक्वल है। देयरफॉर रीजन हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, these are the triangles with equal bases। okay, and therefore BC का वैल्यू कितना है 4, AD का वैल्यू कितना है 8। इफ यू गो फॉर कैंसलेशन आंसर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 4 1 जा 4 2 जा 8। दैट इज ये ऐसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, देयरफॉर अगेन यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जिस फॉर्म में पूछा है उस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या दिख रहा है, अपॉन दिख रहा है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो हम लोग उसका आंसर भी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप सब लोग मेक अ नोट ऑफ दिस, मैं उसको एक बार रिवाइज करके दे रहा हूं आपको। BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB एज गिवन इन द डायग्राम, BC इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 8, देन वी नीड टू फाइंड दिस रेशियो, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADB। नाउ फॉर फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ABC, ऊपर वाले ट्रायंगल में एज वी कैन सी 90 डिग्री एंगल हियर, 90 डिग्री एंगल हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब AB इज अ बेस, BC इज अ हाइट।
फॉर सेकेंड ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री एंगल हमारे पास है, इन विच ए बी इज अ बेस, ए डी इज अ हाइट। तो दोनों में ए बी इज अ कॉमन साइड, तो या तो उसको बेस या तो हाइट ले सकते हो, तो मैंने बेस कंसीडर किया है उसको। सो एज ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस, आंसर क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट। हाइट क्या कंसीडर किया है, BC 4 एंड AD इज 8। कैंसिल करेंगे इसको तो आंसर क्या आएगा, 1/2। सो दिस इज अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर सेगमेंट PR, RQ6, PS6, PR12, find QT. So in this particular diagram, PS is perpendicular to RS, QT perpendicular to PR, और इंफॉर्मेशन में और क्या दिया है, RQ is equal to 6. Okay, so this RQ is equal to 6. Also PS is also equal to 6. PS is also equal to 6. PR is equal to 12. P से लेके R पूरा, okay, this is equal to 12 and we need to find the answer. Okay, therefore step number 1, you can see that परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहां पे परपेंडिकुलर दिख रहा है 2 बार। इसका मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, एक ट्रायंगल को 3 हाइट्स एंड 3 बेसेस हो सकते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 बार हमको परपेंडिकुलर दिख रहा है यहां पे, तो हम लोग 2 टाइम बेस एंड हाइट कंसीडर करेंगे, एक बार एक हाइट, एक बार दूसरा हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ओके, इस पूरे डायग्राम में से अगर ट्रायंगल PQR को मैं कंसीडर करता हूं, ट्रायंगल PQR, ओके, तो इन दैट केस PS इज अ हाइट। अगर PS हाइट है तो बेस आएगा QR, एंड देयरफॉर हाफ into base into height, so base is RQ into height is PS. ओके, फाइंड क्या करना है, QT फाइंड करना है। देयरफॉर RQ का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है यहां पे, हाफ इंटू RQ इज इक्वल टू 6 इंटू PS इज ऑल्सो इक्वल टू 6। नाउ गो फॉर कैंसलेशन, दैट इज 2 1 जा 3 जा, so this is equal to 18. okay, 18 as it is area, 18 square units. सेंटीमीटर अगर दिया होता तो हम लोग क्या लिखते, स्क्वायर सेंटीमीटर। एज सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ हमको नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स एज इट इज एरिया। तो ये किस बात का आंसर आया है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है, देखो 18 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन अभी हमने क्या किया, ये हाइट यूज किया और ये बेस यूज किया, लेकिन उस ट्रायंगल में और एक हाइट है QT। अगर हम लोग QT को हाइट कंसीडर करेंगे तो बेस कौन आएगा, PR। सो अगेन विल रिपीट दिस स्टेप यूजिंग डिफरेंट बेस एंड हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस PR, okay, into height QT. Now solving this, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये अभी आंसर हमारे पास आया 18, इज इक्वल टू हाफ इंटू PR का आंसर कितना है 12 इंटू QT हमको फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर QT फाइंड करने के लिए इन सब टर्म को हम लोग ये साइड लेके आएंगे, दैट इज 18 एज इट इज। ये 2 जो डिनोमिनेटर में, वो अगर साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय ये 12 मल्टीप्लीकेशन में, ये साइड आएगा तो डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल टू QT। ठीक है, नाउ गो फॉर कैंसलेशन। सपोज 2 1 जा 6 जा, 6 का टेबल हम लोग बोलेंगे जब तक 18 नहीं आ रहा है, दैट इज 6 1 जा 6 3 जा, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स।
सो आंसर फॉर क्यूटी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, इसको एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तब तक यू मेक अ नोट ऑफ इट। दैट इज इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी नीड टू फाइंड क्यूटी। व्हाट इज गिवन? दिस पीएस इज इक्वल टू 6, क्यूआर इज इक्वल टू 6 एंड दिस पीआर इज इक्वल टू 12। ओके, सो इन दिस व्हाट वी हैव लर्न ऑलरेडी की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी सीखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसको हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। उसको एक बार P से हाइट ड्रॉ करके दिया है, एक बार Q से करके दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला 2 बार यूज करेंगे। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस QR एंड हाइट PS यूज कर लिया। नाउ पुट द वैल्यूज आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आफ्टर दिस अगेन टेक अ एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल बट विद डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट बेस। QT is a height and PR is a base. Okay, put the values. Now QT फाइंड करना है, ये 2 ये साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में जाएगा और ये जाएगा डिवीजन में। ओके, गो फॉर कैंसलेशन यू विल गेट आंसर फॉर QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सी इन क्वेश्चन नंबर 4 AD पैरेलल टू BC, it is already given. Also AD parallel to BC, it is already given. Also AP and BC are perpendicular. AP and BC are perpendicular. दो बातें हमारे पास यहां पर है। एक, ये AD and BC are parallel जो यहां पे लिखा हुआ है, and AP is given as perpendicular to BC. ये परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एरिया ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ट्रायंगल बीसीडी। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। फिर उसमें अगर बेस हाइट इक्वल है तो हम लोग वो हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विथ अ सॉल्यूशन पार्ट, दैट इज इन दिस टू ट्रायंगल्स, दैट इज in triangle ABC and triangle BCD। ठीक है, इनका रेशियो हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू। नाउ फाइंड द बेस एंड हाइट फॉर बोथ द ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी के बारे में सोचेंगे। ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन दिस BC is a base, AP is a height. BC is a base, AP is a height. For second triangle BCD, BCD, in this again BC is a base and height for this is, हमको हाइट यहां से इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग हाइट ड्रॉ करते हैं तो यू विल फाइंड कि ये वाला हाइट एंड ये वाला हाइट रिमेन्स इक्वल, सेम। व्हाई सो? बिकॉज दीज आर द हाइट्स या फिर दीज आर द ट्रायंगल्स प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों भी ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है एंड पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो देयरफॉर ये दोनों भी ट्रायंगल में हाइट इज सेम, दोनों भी ट्रायंगल में हाइट इज सेम, हाइट दोनों का सेम ही है। व्हाई सो? बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिचुएटेड बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड देयरफॉर इनका हाइट सेम ही है। नाउ बेस के लिए अगर जाते हैं हम लोग तो ABC BCD, इन ट्रायंगल ABC BC इज अ बेस, इन ट्रायंगल BCD अगेन BC इज अ बेस। तो दोनों में बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल, बेस भी इक्वल, और ऐसे ट्रायंगल का आंसर हमेशा आता है 1/1 एज पर आवर प्रॉपर्टी। रीजन, ट्रायंगल्स with equal base and equal height, triangles with equal base and equal height। आंसर क्या पूछा है? दोनों का रेशियो क्या आएगा? देयरफॉर मैंने जैसे बोला आपको, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है आंसर उसी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहां पे इज टू फॉर्म में पूछा है तो मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle BCD is equal to
1:1. ओके, इसको लिख लो, तब तक मैं उसको एक बार फिर रिवाइज करता हूं. इन दिस डायग्राम, triangle ABC and triangle BCD, these are the two triangles and they are situated between parallel lines. दोनों भी triangle parallel line के बीच में है. And as they are situated between parallel lines, their height is same because distance between parallel line is always same. And in both the triangle, BC is a base. So height and base both are equal for these two triangles, and therefore our answer is equal to 1/1 as per our प्रॉपर्टी की बेस हाइट दोनों भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1/1. एंड देयरफॉर रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल इज इक्वल टू 1:1. दिस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस क्वेश्चन what is given? PQ is perpendicular to BC as well as AD is perpendicular to BC. Okay, now find the ratio of following ratios. जो ट्राइंगल का रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग अभी फाइंड करेंगे. ठीक है, हाउ? दैट इज, हमको फॉर्मूला पहले से पता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. हमको वही देखना है कि बेस इंटू हाइट क्या है. अगर बेस इक्वल है तो हाइट लिखेंगे, हाइट इक्वल है तो बेस लिखेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, PQB. इन दिस ट्राइंगल PQB, Q एंगल 90 का है ऑलरेडी, तो PQ इज अ हाइट एंड BQ इज अ बेस. ठीक है. सेकेंड PBC. इन ट्राइंगल PBC हाइट कौन है? PQ, बेस कौन है? BC. क्या सेम आया, हाइट या बेस? दोनों ट्राइंगल में वापस देखो, इन ट्राइंगल PQB, ये छोटे ट्राइंगल में PQ इज अ हाइट, दूसरे ट्राइंगल में भी क्या था? PQ इज अ हाइट. इसका मतलब इन बोथ द ट्राइंगल्स हाइट इज सेम एंड देयरफॉर आवर आंसर इज बेस अपॉन बेस. सो फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल PQB वी हैव BQ एज अ बेस. हाइट कौन है वहां पे? PQ. फिर सेकेंड ट्राइंगल PBC में PQ अगेन हाइट, तो दोनों में हाइट सेम है, तो हाइट कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वो कैंसिल ही होने वाला है. तो बेस क्या आएगा? फॉर ट्राइंगल PBC बेस आएगा BC. तो मैंने बेस लिखा है, तो इसका रीजन, दीज आर द ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स. हाइट इक्वल है करके मैंने आंसर लिखा बेस अपॉन बेस. सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड में चेक करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. ओके, इन ट्राइंगल PBC PQ इज अ हाइट, BC इज अ बेस. ठीक है. दूसरा ट्राइंगल है ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC. चेक करो, ABC में AD इज अ हाइट एंड BC इज अ बेस. सो ट्राइंगल का नेमिंग भी आप देखते हो तो BC आपको डबल टाइम दिखेगा, तो इसका मतलब इन बोथ द ट्राइंगल BC इज अ बेस विच इज कॉमन, सेम, इक्वल. देयरफॉर हम लोग आंसर लिखेंगे हाइट अपॉन हाइट. सो फॉर फर्स्ट ट्राइंगल PBC, फॉर ट्राइंगल PBC, BC बेस, PQ हाइट, तो बेस तो सेम है तो मैं हाइट लिखने वाला हूं PQ. फॉर सेकेंड ट्राइंगल ABC, BC बेस और हाइट क्या आएगा? AD. तो मैंने अभी यहां पे हाइट लिखा है बिकॉज बेस सेम है, सो मैं रीजन लिखूंगा यहां पे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस. एज बेसिस आर इक्वल, आंसर इज हाइट अपॉन हाइट. ओके, सो फर्स्ट टू रेशो हमने फाइंड कर लिया. नाउ रेशो नंबर 3 एंड रेशो नंबर 4, दैट इज नेक्स्ट टू रेशोज. नेक्स्ट एरिया ट्राइंगल ABC एंड एरिया ट्राइंगल ADC. चेक करते हैं फर्स्ट ट्राइंगल ABC, जिसमें BC इज अ बेस एंड AD इज अ हाइट. फर्स्ट ट्राइंगल में BC इज अ बेस, AD इज अ हाइट. दूसरा ट्राइंगल है ADC, जिसमें AD इज अ हाइट, DC इज अ बेस. देख लो यहां पे, इन ट्राइंगल ABC AD is a height, BC is a base. In second triangle ADC again AD is a height. तो दोनों में height AD is same, दोनों में height present है, so height is same, equal, common. तो हम लोग आंसर लिखेंगे बेस अपॉन बेस. तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल ABC
जिसमें बेस है BC, हाइट तो AD है जो कॉमन है, दूसरा वाला ट्राइंगल है ADC जिसमें हाइट सेम है, उसका बेस क्या है DC। रीजन, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, हाइट सेम है तो आंसर क्या लिखा, बेस अपॉन बेस। नाउ फोर्थ रेशो एरिया ट्राइंगल ADC in this DC is a base, AD is a height। दूसरा ट्राइंगल है PQC जिसमें QC is a base, PQ is a height। now in these two triangle ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ऐसे टाइप में हम लोग दोनों को लिखना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट। सो फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल ADC वी हैव DC base into AD height। in triangle PQC, QC is a base into PQ is a height। ओके, जैसे हर बार रीजन लिखा वैसे इसके लिए भी हम लोग, हमारे पास रीजन है वो पूरा बड़ा वाला स्टेटमेंट, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज of two triangles is equal to ratio of product of their bases and करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये हो जाएगा इसका रीजन। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर वी कंक्लूड प्रैक्टिस सेट 1.1। टोटल 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। थैंक यू।